رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اج دا ساڈا موضوع سوگ، ماتم، تعزیہ۔ سوگ دے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن دا سوگ، 3 دن تو زیادہ دن دا سوگ جائز نہیں۔ ہاں، عورت جدا خامد فوت ہو جائے اپنے خامد دے سوگ وچ 4 مہینے تے 10 دن گزارے گی، یعنی کوئی بھی فوتگی ہو گئی ہے تو 3 دن دا سوگ ہے، اور عورت واسطے اپنے دے خامد اگر فوت ہو جاندہ تو 4 مہینے 10 دن دا سوگ کرے گی۔ تو ماتم عام طور تے ماتم تے کیا جاندہ ہے کہ فوتگی ہو جائے تو وہ افسوس کرنا، وہ رونا، رون دی حد تک جائز ہے، رون دی حد تک جائز ہے فوتگی تے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صاحبزادے آپ دا انتقال ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھاں بارکاں چو آنسو آئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہے کی؟ فرمایا فطری تقاضا ہے جدے تحت آنکھاں چو آنسو آندے نے۔ تو اس طرح ہی امام حسین علیہ السلام دی شہادت دی خبر جدوں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیتی، حضرت امام حسین علیہ السلام چھوٹے جے سن، اس وقت بھی آپ دی آنکھاں مبارکاں چو آنسو آئے۔ تو واہ ویلا مچانا جڑا ہے وہ غلط ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ ممتحنہ 28 سپارہ آیت نمبر 12 ادھر ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا کچھ شریک نہ ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ وہ بہتان لگائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضع ولادت میں اٹھائیں، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی عورتوں نے بیعت نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک دی سورت ممتحنہ دی آیت نمبر 12 دا ترجمہ میں سنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ خود حکم فرما رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جدوں عورتاں تہاڈے کول بیعت ہون واسطے حاضر ہون تو انہاں کولوں اس چیزاں دے وعدے لو تے بیعت کر لو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں نے بیعت کردے ہوئے اس ایت دے مطابق عہد لے، وہ جڑے وعدے لے، بیعت ایک وعدہ بھی ہتھاں چ ہتھ دے کے ایک وعدہ کیتا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نوحہ کرنے سے بھی منع فرمایا۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں کپڑے پھاڑ لیا کرتی تھیں اور سر کے بال کٹا دیتی تھیں اور بڑا واہ ویلا مچاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور سے منع فرمایا۔ جہڑیاں عورتاں اے فتح مکہ جس لئے ہویا تو اس لئے لوگ آ کے بیعت ہوندے رہے، مسلمان ہوندے رہے مرد، اور اس تو بعد پھر عورتاں آئیاں
तो औरतों ਨੂੰ बैत फरमाया आपने। तो उन्होंने औरतों के विचों 457 औरतां उस टाइम ते बैत हुई, लेकिन औरतों ਨੂੰ बैत का तरीका ਇਹ ਸੀ कि ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਤੇ बैत ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, लेकिन औरतों ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं सी। औरतों ਨੂੰ या तो रुमाल एक पासों आप पकड़ के एक दूसरे पासों औरतों ਨੂੰ पकड़ा के बैत किया जाता सी, या बाद मौक़िਆਂ ते ਵੱਡੀ परात किसी चीज़ पानी पा के एक तरफ अपना हथ मुबारक सरकार रखते सन, दूसरी तरफ औरतों का हथ खाते सन। हत्थां 'ਚ हथ दे के औरतों ਨੂੰ बैत नहीं किया, यह तरीका सी। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ औरतां बैत होईयां उन्हां दे विचों एक औरत ने बयान किया कि जिन चीज़ों पर हमसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद व पैमान लिया था उनमें यह भी था कि हम किसी काम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी ना करेंगे, अपने चेहरे ना नोचेंगी और बाल ना कटाएंगी, अपना गिरेबान ना फाड़ेंगी, वाह वेला ना मचाएंगी। यानी ज़माना जाहलीत का दस्तूर सी जिहड़ा कि जदों इस्लाम तो पहले वो जिहड़ा दौर सी वो ज़माना जाहलीत कहलांदा है। तो उस दौर दे विच मैयत इस तरह उच्ची आवाज़ नाल रोया जांदा, पिटिया जांदा, सिर खोल लेने, कईयां ने उस सोग दे विच वाल औरतां मना देंदियां सन। तो इस चीज़ां सारियां जिहड़ियां सी उस वेले ये ज़माना जाहलीत दे दस्तूर सन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वादा लिया कि मेरे हथ यानी बैत करो, इस चीज़ का वादा करो कि तुसी यह काम नहीं करोगे। तो सोग जिहड़ा रोना जिहड़ा है वो जायज़ है, रोन दी हद तक, लेकिन जिन्हों साड़ी ज़बान च वैन कहते हैं, बैन पाना, वैन पा पा के रोना, उच्ची उच्ची वाह वेले मचाने, सीना कोबी करने, कपड़े फाड़ने, सिर खोलने, यह चीज़ां जिहड़ियां ने इन्हां तो इस्लाम ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो मातम रोन दी हद तक जायज़ है, लेकिन यह जिहड़ियां चीज़ां जिन्हां तो मना फरमाया गया तो ज़ाहिर है मना, वो काम जिहड़ा कोई करेगा वो सुन्नत के खिलाफ होएगा, नाफरमानी होएगी, गुनाह होएगा। तो बाकी करबला के वाक़या तो 300 साल बाद जिहड़ा मौजूदा है रस्म रिवाज है मातम का तरीक़ाकार जिहड़ा हुण चल रहा है, ये वाक़या करबला तो 300 साल बाद शुरू होया। हाफिज़ इब्ने कसीर उन्होंने कुरान पाक की तफसीर की है, बहुत बड़े आलम होए ने अहले सुन्नत दे। तो उन्होंने लिखा है अपनी किताब उहदे विच अल बदाया वन निहाया किताब है उन्होंने, उन्होंने लिखा है कि यह जरा 351 या 352 और इमाम जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह अलैह सुन्नत दे बहुत बड़े इमाम होए ने, उन्होंने काफ़ी मरतबा हज़ूर पाक सल्लम दी बेदारी जागदे होए दीदार होया। तो अहले सुन्नत दे बहुत बड़े इमाम होए ने, आलम होए ने। तो उन्होंने भी लिखा ऐसे चीज़ को बयान किया है कि 351 या 352 सन हिजरी वाक़या करबला 61 हिजरी पेश आया। तो तकरीबन 300 साल बाद मौजूद दौला ये ईरानी नस्ल शिया सी। तो ये अपने मक्कारी दे नाल तकीए दे नाल ते बड़े मकरो फरेब करके ते हुकूमत में शामिल हो गया, वज़ीर बन गया। तो बगदाद दे विच उन्हें अपनी हुकूमत कायम कर ली। तो उन्हें फिर 10 मुहर्रम जदों आया तो उन्हें हुक्म दे दिता बगदाद के बाज़ार बंद कर दिते जान, नान बाई जड़े ने तंदूर वाले खाना ना पकान वो भी बंद कर देन खाना। और यह आर्डर जारी कर दिते कि औरतां सिरां नूं वालां नूं खोल के सिरां दे विच मिट्टी पांदियां होइयां, मूँह ते थप्पड़ मारदियां होइयां, स्याह लिबास पहन के तो अपने कपड़े पाड़दे होया बाज़ार च निकलन, ये उन्हें आर्डर कर दिता। कोई बाज़ार नहीं खुलेगा, हुक्मरान जो बन गया, आर्डर कर दिता उसने। यानी वाक़या करबला तो 300 साल बाद यह मामला होया। फिर उन्हें अपने दौरे हुकूमत बगदाद दी जिन्नियां मस्जिदां सन उन्हां दे दरवाज़ियां ते सहाबा कराम दे
नौज़ बिल्ला लानत दे लफज लिख दिते उन्होंने साहबा कराम ते। तो जदों इन्हें मस्जिद दौला ने हुक्म जारी कर दिता औरतों को घरों चो निकलो, सियाल लिबास पाओ, वालों खिलार लो, मिट्टी पाओ सिरां ते मुँह ते थप्पड़ मार दे, सीना को भी कर दे, बाहर आ जाओ। तो शैतान तो कहते हैं बच्चों ते औरतों च और बाजार शैतान का ज़्यादा दा चलता है। तो जो औरतां भी होन तो चेहरे भी खुले होन, सिरों नंगियां वाल खिलारे होन, तो तमाशा देखने वाले तो आएंगे। फिर तो ये काम हुक्मन होए जिस वेले तो लोग वेखण वास्ते, तमाशा वेखण वास्ते भी आते रहे। तो ईरान दे विच तातारियां दी हुकूमत सी, उसथे नासरुद्दीन शाह पाशा, वो भी शिया ते राफजी सी, उन्हें बड़े बड़े जुल्म किए। तो ईरान दे विच भी उन्हें सारिया चीज़ां चला दित्तियां, सारे रस्म रिवाज उन्हें शुरू कर दिते उत्थे ईरान दे विच भी। हालांकि ईरान हज़रत सईदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला दौरे हुकूमत च फतह होया। तो इस तरह ही उन्हें बहुत सारे सुन्नी मुसलमानों नूं, आवाम नूं ते कुछ नहीं किया। हिंदुस्तान दे विच तातारियां दी हुकूमत सी, तो उन्होंने आवाम, सुन्नी आवाम मुसलमान जिहड़े सी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उलमा नूं उन्हें बेदरेग उन्हें कतल किया। ना कोई समझाने वाला होवे, ना किसी नूं गल दा पता लगे, जिवें असीं कहांगे उवें लोकी मन्नी जाणगे। इस तरीके दे नाल इत्थे भी ये सारे काम शुरू हो गए हिंदुस्तान दे विच। हिंदुस्तान उस वक्त बहुत बड़ा मुल्क सी, पाकिस्तान नहीं सी बनया, बांग्लादेश नहीं सी बनया, श्रीलंका नहीं सी बनया, तो अफगानिस्तान भी उहदे शामिल सी, रूस सारा शामिल सी, चाइना का काफ़ी हिस्सा शामिल सी, बहुत बड़ा मुल्क सी। तो इन्होंने सारे हुक्म जारी किया, जलूस कढ़े, सारिया चीज़ां मातम और साहबा कराम ते खुल्लम खुल्ला फिर लान तान और शुरू हो गया। तो ये राफजीयत, राफजी कहते हैं, शिया नूं राफजी कहा जाता। तो इस मज़हब का खूब प्रचार होया। फिर तो हिंदुस्तान दे विच फिर अगे आके औरंगजेब आलमगीर, उहदी हुकूमत जिहड़ी सी वो कमज़ोर हुंदी लगेगी मुगलों की सल्तनत जिस वेले। तो लखनऊ के इलाके गवर्नर सी, तो उन्हें भी ये काम शुरू करा दिता। मुख्तलिफ इलाकों में जिथे जिथे कोई गवर्नर से उन्हें उत्थों तो अपनी हुकूमत कायम कर ली। तो वह लखनऊ का तो जौनपुर फैज़ाबाद उन्होंने इलाकों के जोड़ा सी वो शिया की हुक्मरानी सी। तो उन्होंने इलाकों के भी उन्होंने बड़ी सख्ती के नाल, ताकत के नाल ये चीज़ां शुरू करवा दित्तियां। तो ये राफजीयत नूं फैला दिता। जिहड़ा आदमी 10 मुहर्रम नूं इन्हां दिनां दे विच, मुहर्रम के 10 दिनां बाहर नहीं सी निकलदा, जलूस शरीक नहीं सी हुंदा, उन्होंने सज़ा दी जाती सी। इस तरह ही वाक़या करबला तो 746 साल बाद, 746 वो काम तो जोड़ा है वो है ना 300 साल बाद मातम वाला। तो ताज़िया, ताज़िया की है, कोई फौत हो जाए तो कही है यार ताज़ियत वास्ते जाना है, तो कि तसल्ली देना। ताज़ियत, ताज़िया, ताज़ियत करना, तसल्ली देना, लवाहिकीन जाके हौसला देना, तसल्ली देना। तो ताज़ियत है, ताज़ियत है कनो तैमूर बादशाह होया, बहुत बड़ा हुक्मरान सी और एक जालम हुक्मराना दे विचों होया सी। 1,70,000 बंदा उन्हें कतल किया उन्हें अपनी हुकूमत कायम करने के खातर। तो उस बादशाह दे 801 हिजरी, ये 801 हिजरी का अगे वाक़या है, 801 हिजरी का, यानी 750 साल तकरीबन वाक़या करबला तो तकरीबन 750 साल बाद का मामला है जो ताज़िया शुरू है। वो तैमूर बादशाह हर साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे रोज़े मुबारक ते हाज़री देन जांदा सी।
ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, उन्होंने क्या कि यह गलबात मैं बड़ा परेशान है कि मैं हर साल जाना उत्थे हाज़री वास्ते इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम दे रोज़ा मुबारक से, लेकिन मैं कि जा नहीं सकता। वो शिया सी, उन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे रोज़े मुबारक का एक मॉडल बनाया, लकड़ी का बना के, तो उन्हें उत्ते कपड़े या कागज़ वगैरह लगा के उस तरह का नमूना बना के तो बादशाह के सामने लिया के रखा और उसका नाम ताज़िया रखा। सन 801 हिजरी दे विच 750 साल बाद तकरीबन वाक़या करबला तो बादशाह नूं बड़ी खुशी हुई कि चलो मैं जा नहीं सके हाज़री वास्ते, तो वो एक यादगार के तौर पर मैं सामने दीदार कर रहा उसका नमूने का शबीह या ताज़िया उसका नाम रखता। अगले साल उस शिया वज़ीर ने आम लोग अब देखा, बादशाह बड़ा खुश हो गया, उन्हें लोगों को इनाम के लालच दे के बहुत सारे ताज़िया बना के लियाओ बादशाह को पेश करो। बादशाह खुश होंदा है नाल, उन्हें एक काम शुरू कराता जिहड़ा बड़ा अच्छा ताज़िया बना के लिया बादशाह बड़ा इनाम दिंदा सी। उत्थों ये सारी चीज़ जिहड़ी सी ये चीज़ ताज़िया शुरू हो गया। तो यह अज दा बयान सी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है।